بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ نادر کام بدترین دھاندلی کے باعث بھی عمران خان صاحب ہرانا ان کو مشکل ہو چکا ہے، بلکہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے۔ اور عمران خان کا سونامی 8 فروری کو باہر نکلا اور عوام نے انقلاب برپا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے کل پاکستان تحریک انصاف کی عوام کو باہر نکلنے کی کال دے ڈالی ہے اور احتجاج کا اعلان کر دیا ہے کہ پرامن احتجاج کیا جائے۔ تو اس سب کے اندر سب سے پہلی خبر جو اس وقت سامنے آئی ہے کہ اچانک سے ایمرجنسی کے الارم بجنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس وقت شہر اقتدار سے خبریں جو آ رہی ہیں وہ کچھ اچھی نہیں ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور انٹرنیٹ بند کرنے کی اطلاعات ہیں کہ پاکستان میں اس وقت انٹرنیٹ سروسز کو بند کر دیا گیا ہے اور خوفناک تصادم اس وقت شروع ہو گیا ہے۔ کچھ اہم ترین اور خوفناک ویڈیوز اس وقت سامنے آئی ہیں کہ کس طرح سے اب عوام پر دوبارہ سے وہی 9 مئی والا تشدد شروع کر دیا گیا ہے۔ وہ ویڈیوز میں نے آپ کے سامنے آج سکرین پر چلوانی ہے کہ صورتحال کس جانب جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا، عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا۔ اور پھر دوسری جانب عمران خان اور فوج کے مذاکرات، فوج کے سپریم کوارڈر اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اس وقت نئی لنکا ڈھا دی ہے اور اپنا کارڈ کھیل دیا ہے۔ وہ کارڈ کیا ہے اور کس طرح سے یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں اور یہ بات اب صلح تک جا پہنچی ہے، اس حوالے سے بھی ایک اہم ترین خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہے۔ ناظرین کم سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت قومی اسمبلی کی نشستوں پر لیڈ کر رہی ہے اور 100 سیٹیں جیت چکی ہے، اور یہی اس وقت پیغام دیا گیا تھا۔ اور جو اہم ترین ملاقات ہوئی تھی شہر اقتدار میں، اس میں یہی بات ہوئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو 100 سے زائد سیٹیں نہیں دینی۔ اور کل سے ایک ہی چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ 100 سے زیادہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو نیشنل اسمبلی میں نہیں ملی ہیں، اور حالانکہ 2/3 میجورٹی پی ٹی آئی ون کر چکی ہے۔ فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت 180 سیٹیں موجود ہیں، لیکن فارم 47 پر جو دھاندلا ہوا، نواز شریف و مریم محمدہ شہباز، ریحانہ ڈار، جو باقی نشستیں ہیں تقریباً 50-60 سیٹیں جو ہیں وہاں پر بدترین دھاندلی کر کے وہ سیٹیں جو ہیں ان سے واپس لے گئی ہیں۔ اب آصف فریداری صاحب نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ پیغام پہنچا دیا ہے، بیرسٹر گور علی خان کو الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد پیش کر دی ہے کہ جناب آپ کو جو ہے وہ مبارک ہو۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گور علی خان کو کے پی کے وفاق اور پنجاب میں بھاری ایکسس سے جو ہے وہ کامیاب ہونے پر مبارکباد دی گئی ہے، اور انہوں نے یہ اپنا پیغام مشترکہ دوست کے ذریعے بھجوایا ہے۔ ظاہر ہے بیرسٹر گور علی خان صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے آئے اور انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا تھا، تو ان کے مشترکہ دوست موجود ہیں، تو ان کے ذریعے یہ جو ہے پیغام رسانی ہوئی ہے، اور آصف فریداری نے پیغام میں نیک خواہشات کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ اور پھر دوسری جانب جو بیرسٹر گور علی خان صاحب ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم وفاق کے پی کے میں حکومت بنائیں گے اور ہم نے قومی اسمبلی کی 170 نشستوں پر برتری حاصل ہے اور ہماری اکثریت کو تسلیم کیا جائے، عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، اپنی مرضی کی حکومت نہ بنوائی جائے، کسی کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ جناب جو ہے بیرسٹر گور علی خان صاحب نے اس وقت یہ میسج جو ہے وہ کنوے کر دیا ہے۔ علیمہ خان عمران خان صاحب کی بہن ہے، جناب انہوں نے کہا ہے کہ کل سے جو تماشا لگایا گیا ہے، میں دیکھ رہی تھی کہ ایک وکٹری تقریر کی جا رہی تھی، انہیں شرم بھی نہیں آ رہی کہ وکٹری اسپیچ ہوتی کیا ہے۔ 4 لوگ 40 سیٹیں لے کر حکومت بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ میرا خیال تھا جو فیملی کھڑی ہے اسے شرم آ رہی ہوگی۔ اگر عام انتخابات پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ کوئی آزاد امیدوار کسی بھی پارٹی میں گیا تو لوگ ان کا احتساب لیں گے اور ووٹ جو ہے اپنا ووٹ واپس لے لیں گے۔ ہمارا ووٹ چوری ہوئے ہیں، ہمارا مینڈیٹ واپس دیا جائے۔ وہ پرانا زمانہ تھا کہ لوگ 5000 پر ووٹ ڈلوا دیتے تھے، اب وہ چیزیں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں۔ یہ جناب انہوں نے اس پر اپنی جو ہے اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ اور اسلام آباد میں جو ہنگامی پریس کانفرنس ہوئی، بیرسٹر گور علی خان صاحب اور ان کے ساتھ رؤف حسن صاحب موجود تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف وفاق پنجاب اور کے پی کے میں حکومت بنائے گی اور تحریک انصاف کی فتح کو غلامی نامنظور کے نام کرتے ہیں، اور لوگوں نے غلامی کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں رؤف حسن اور دیگر رہنماؤں نے بھی کہ حملہ انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی ہدایت پر جن علاقوں میں ہمیں ہرایا جا رہا ہے وہاں کل آر او کے دفتر کے سامنے احتجاج کریں گے، احتجاج پرامن ہوگا اور آپ کے پاس ڈنڈے نہیں پاکستان کا جھنڈا ہونا چاہیے۔ یہ جناب انہوں نے یہ عمران خان صاحب کا پیغام اڈیالہ جیل سے باہر پہنچا دیا ہے، اور عوام اس وقت جو ہے وہ اب کل احتجاج کرے گی، پرامن احتجاج ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینئر وکیل ہیں حامد خان صاحب، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہمارا ہوگا مگر کون ہوگا اس کے متعلق عمران خان فیصلہ کریں گے۔ اب بہت سارے ذرائع کی جانب سے خبر چل رہی ہے کہ علی محمد خان کو وزیر اعظم پاکستان بننے کا فیصلہ ہوا ہے، خان صاحب نے کر لیا ہے، اور پھر وزیر اعلیٰ کے پی کے علیم گڈھا پور ہو گیا، پھر نام چل رہا ہے کیسر کیسر کے بھائی جو ان کو جو ہے وہ عاقب اللہ ان کو وزیر اعلیٰ کے پی کے بنایا جائے گا، لیکن ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ پارٹی کی جانب سے سامنے نہیں آیا، اور پارٹی کی جو لائن ہے اس
उसके मुताबिक अभी तक कोई ऐसा ऐलान सामने नहीं आया। लेकिन खैर उन्होंने जनाब मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि हमारा जीता हुआ कोई उम्मीदवार दूसरी तरफ गया तो तारीखों से माफ नहीं करेगी। नून लीग पीपल्स पार्टी मंडी लगाकर बैठी है, खुशफहमी है कि हमारे बंदे खरीद लेंगे, हमारा कोई भी रुकन नहीं, पार्लियामेंट किसी के पास नहीं जाएगा। अब जनाब ये सारी चीजें तो आपके सामने हैं। फैसल वाडा साहब आप सबको पता है कहां से बोलते हैं और ये ताकतवरों के बड़े करीब हैं। तो उन्होंने यहां पर एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता 60 अरकान जो है वो बिकने को तैयार हो चुके हैं, जबकि 20-25 अरकान बिकने को तैयार नहीं है। ARY न्यूज के मुताबिक फैसल वाडा ने कहा कि तर्जिए में जो मैंने दिए थे, जो नंबर दिए थे उसी के करीब आए। यानी कि आप सबको पता है कि फैसले तो पहले हो चुके थे। खान साहब इनकलाब भी ले आए, खान साहब के पीछे आवाम भी खड़ी है, लेकिन उनका मैंडेट तस्लीम नहीं किया। और अब फैसल वाडा के मुताबिक पहले इन्होंने तर्जिए किए कि PTI जो है उनसे बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट वापस ले लेगी। चीफ जस्टिस ने वही काम कर दिया। अदलिया कैसे खेल रही थी, फैसल वाडा साहब पहले ये बात कर रहे थे, अदलिया फिर आपके सामने आ गई और अब ये बात हो रही है कि 60 अरकान को खरीदा जाएगा और वो खरीदने को बिकने को तैयार हो चुके हैं। तो जनाब ये भी उनका दावा कबल वक्त है। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन अवाम उनसे अपना बदला ले लेगी, फिर अवाम उनकी दुर्गत बनाएंगे। वो जहां पर जाएंगे अवाम उनको मारेगी। जिस तरह से पहले आपने उन लोटों का हाल जो है वो देख लिया कि कोई भी लोटा इस इलेक्शन में जो है वो कामयाब नहीं हुआ। तो खैर जनाब उन्होंने कहा कि नून लीग को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, वज़ारत उज़्मा से मुतालिक पीपल्स पार्टी सबको निचोड़ लेगी। फैसल वाडा ने कहा कि नून लीग 80-82 के नंबर तक पहुंच जाएगी। परसों मैंने कहा था कि मैच में एक और टेनिस बॉल का होगा, नून लीग इस पर छक्का नहीं मार सकेगी। साबिक वजीर ने आजाद उम्मीदवारों के हवाले से जो दावा किया है कि 30-35 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो ये सारी चीजें आपके सामने कि पीपल्स पार्टी जो है वो छक्का मारने को तैयार है और वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी से हो सकता है। उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी जो है वो सबको निचोड़ लेगी और वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पीपल्स पार्टी के पास ही जाएगी। तो नून लीग जो है वो जनाब इस वक्त उनके हाथ में गेम नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी किसी भी वक्त जो है वो गेम को पलटा जो है वो डाल सकती है। अब ये सारी चीजें तो जनाब आपके सामने हैं। सदर पाकिस्तान जो है अब उन्होंने एक नया पत्ता खेला है। सदर पाकिस्तान ने पत्ता क्या खेला, अब सबको पता है कि जो सिस्टम बैठ गया, तकरीबन 48 घंटे हो चुके हैं और रिजल्ट उस तरह से नहीं आ रहे जिस तरह से आने चाहिए थे। हालांकि 8-9 घंटों में जो है वो रिजल्ट्स को पेश करना होता है, लेकिन धांधली इतनी करनी थी और इतना वोट इमरान खान को पड़ गया था कि धांधली नहीं कर सकते। फॉर्म 45 पर रिजल्ट कोई और, फॉर्म 47 पर रिजल्ट कोई और है। और जिस तरह से धांधला हो रहा है कि लाख वोटों की लीड से PTI जहां से जीत रही थी वहां से भी नून लीग के उम्मीदवारों को जितवाया गया है। अब ये सारी चीजें तो आपके सामने है। तो खैर जनाब अब अगर EVM मशीन होती तो आप 5 बजे पोलिंग का वक्त खत्म होता और 8-9 बजे आपके पास जो है वो जनाब रिजल्ट आ जाते पूरे पाकिस्तान से, 12 बजे पाकिस्तान की कौम हो जाती। लेकिन EVM से आपको पता कि धांधली नहीं होती, इलेक्शन मैनेज नहीं हो सकते। खान साहब ने EVM मशीन का कानून पास कर दिया था, लेकिन फिर इंपोर्टेड रजीम आई और उन्होंने जनाब ये सब कुछ नहीं कर, उन्होंने जनाब ये सब कुछ खत्म कर दिया ताकि जो धांधली ज़्यादा इलेक्शन होते। अब खान साहब को तो डर नहीं था, अब इनको डर यह था कि जनाब हम धांधली करके आएंगे और हमने धांधली करके ही आना है, हमने चोर दरवाजे से ही आना है, हमने गेट नंबर 4 की सियासत करनी है। तो जनाब हम धांधली के बगैर नहीं जी सकते। इनके दिल में चोर था और इन्होंने वो सब कुछ कर दिया और EVM मशीन जो है वापस ले ली। अब इस सब के अंदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इसके ऊपर जो है अपनी अहम तरीन स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए हमारी तवील जद्दोजहद को याद रखें। उन्होंने जनाब ट्विटर पर अपना पैगाम जारी किया और कहा कि EVM में कागजी बैलेट थे जिन्हें हाथ से गिना जा सकता था, जैसे कि आजकल किया जा रहा है, लेकिन इसमें एक सादा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर काउंटर भी था जो हर वोट डालने के लिए दबाए जाने वाले बटन को साथ साथ गिन सकता था। अब हर उम्मीदवार का रिजल्ट पोल खत्म होने के 5 मिनट तक के अंदर दस्तयाब होता और प्रिंट भी हो जाता। उन्होंने कहा कि हमारी ये तमाम जद्दोजहद है जिसके लिए हमारे सदर में 50 शायद मीटिंग हुई, नाकाम की गई। अगर आज EVM होती तो मेरा ये पाकिस्तान इस बहरान से बच जाता। ये जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपना पैगाम जो जारी करते कि अगर आप EVM मशीन रखते तो पाकिस्तान आज इस बहरान से बच जाता जिस तरह से आज पाकिस्तान जो है बहरान का शिकार है। अब जनाब बहरान मजीद बढ़ता चला जा रहा है। आप सबको पता है कि धांधली से जो कुछ हो रहा है, PTI प्रोटेस्ट भी कर रही है, पूरा मैंने एहतजाज है, मैंने बहुत सारे एहतजाज को कवर भी किया, मैं जाता भी रहा देखने के वहाँ पर सूरत हाल क्या है। तो पुलिस वहाँ पर जो है वो जिस तरह से गुंडागर्दी कर रही है वो सब कुछ आपके सामने है। तो इमरजेंसी के अलार्म जो है वो जनाब बजना शुरू हो चुके हैं। खबरें अच्छी नहीं हैं कि इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, खौफनाक तसादुम इस वक्त शुरू हो चुका है। मैं कुछ वीडियोस आपके सामने और कुछ विजुअल स्क्रीन पर चलवा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि इस वक्त सूरत हाल जनाब क्या है। सबसे पहले तो ट्विटर पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिया गया है। ट्विटर की जो इस वक्त सर्विस है वो पाकिस्तान में नहीं चल रही, लोग VPN लगाकर ट्विटर चला रहे हैं और इससे होगा क्या कि लोग इस वक्त जो आवाज़ उठा रहे हैं धांधली के खिलाफ उसको रोका जा सके। अब हो सकता है कि आइंदा कुछ घंटों के अंदर सोशल मीडिया को भी बंद कर दिया जाए पाकिस्तान में और फिर दबा कर धांधली की जाए और कुछ और भी इनके प्लान इस वक्त हो सकते हैं। तो जनाब तलागंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही थी, वहां पर जो RO है वो फॉर्म 47 नहीं दे रहे थे, तो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा एहतजाज किया। उसके बाद जिस तरह से पुलिस ने वहां पर शेलिंग और लोगों पर गोलियां बरसाई। सबसे पहले आप जनाब ये वीडियो देखें कि खौफनाक तसादुम इस वक्त शुरू हो चुका है।
जनाब आपने ये वीडियो जो है वो देख ली है। अब आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मुअत्तल किया जा रहा है और पीटीआई के वर्कर्स जो सामने आए हैं वो यही नारा लगा रहे हैं कि गोली मार दो हमें, हम अपना मैंडेट लेकर रहेंगे। अब अवाम डट गई है और अवाम ये बात कर रहे हैं कि गोली मार दें लेकिन हम अपना मैंडेट लेंगे। आप जरा ये वीडियो भी अवाम की देख लें। पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, तलागंग से इनका ताल्लुक है और ये बात करें कि हमें गोली मार दें, क्योंकि गोलियां इन पर सीधी चलाई गई हैं। इससे पहले गुजरात के अंदर वाकया जो है पेश आया है। तो तलागंग की पुलिस ने इस वक्त अंधाधुंध फायरिंग और शेलिंग करना शुरू कर दिया। अब जरा ये वीडियो भी देख लें। जी आपने ये वीडियो जो है वो भी मुलाहिजा फरमा ली है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर हालात ख़राब हैं। इससे पहले गुजरात की सूरत हाल थी और इलेक्शन कमीशन ने NA-47 इस्लामाबाद में जो हल्का है शेख शाहीन का, जहाँ पर उनको हरवा दिया गया, वो भारी बर्तरी से वहाँ से जीत रहे थे, तो उनके नताइज तब्दील जो किए गए हैं उन पर रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है और अब ये नताइज वापस होना शुरू हो जाएंगे। चाहे वो तलागंग और चकवाल, सलमान अकबर राजा जो हैं उनके नताइज जो हैं वो जारी हो गए हैं कि वो भी जीत गए हैं। रेहाना डार इम्तियाज़ साहिबा उन्होंने भी जो है वो अपनी हार को चैलेंज कर दिया कि जिस तरह से ख्वाजा आसिफ जो हैं वो जीते हैं, वो भी आपके सामने है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो उन्होंने जनाब NA-130 से नवाज शरीफ जो है उनकी जीत को चैलेंज कर दिया है। तो ऐसी सीटें जहां पर जो है वो धांधली हुई है तो फार्म 45 उनके पास मौजूद हैं, तो उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सर लेने में कामयाब हो जाएगी और ये पीटी एक बहुत बड़ा सरप्राइज इस वक्त दे सकती है। तो ये जनाब सूरत हाल आपके सामने है कि ये एमरजेंसी की जानिब सूरत हाल को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क भर में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा इंतशार किया जाए। अब इसका जिम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इसके जिम्मेदार हैं? वो तो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज कर रहे हैं और आप उनको उनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं, आप उनके ऊपर शेलिंग कर रहे हैं। और आप जब कहते हैं कि 9 मई हो गया तो फिर 9 मई के जिम्मेदार कौन है? 9 मई किया किसने है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने कर दी। ये आपने समझना है कि सूरत हाल ये खुद क्रिएट करने की जो है वो कोशिश करते हैं ताकि लोग जो है वो गुस्से के अंदर आकर जो है इस तरह की जो है वो कैओस क्रिएट करने की कोशिश करें। तो खैर जनाब इमरान खान और फौज की मुज़ाकरात इसके ऊपर बड़ी बात हो रही है और इस वक्त सब ये बात कर रहे हैं, सब सहाफ़ी, पाकिस्तान के दानिश्वर, बूढ़े सहाफ़ी सुहेल राइज, अहमद मीर, जितने भी अहमद अब्बास साहब, अब ये एक ही बात कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को दिल बड़ा करके नताइज को तस्लीम करना चाहिए। इमरान खान जीत गया, पीटीआई जीत गई है, इसके ऊपर जियो न्यूज़ बार बार बात कर रहे हैं। तो जनाब अब ये नताइज मानने को तैयार नहीं है। वही शेख मुजीब वाली सूरत हाल है कि उस वक्त वो जनाब उनका मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया था, अब भी मैंडेट तस्लीम नहीं हो रहा। तो उमर चीमा साहब, ये जनाब आप सबको पता कि इमरान खान साहब से इतना बॉक्स सकते थे कि आउट ऑफ द वे जाकर जनाब ये इमरान खान के खिलाफ बोलते थे। अब ये सहाफ़ी जो है वो भी ये बात करने पर मजबूर हो गए। ये दावा कर रहे हैं कि मौजूदा इलेक्शन के नताइज के बाद चौधरी रियासत को अंदाजा हो गया होगा कि इमरान खान का तोड़ किसी सियासी जमात के पास मौजूद नहीं है, ये चले हुए कारतूस है। अब इमरान खान को डील करने के लिए इमरान खान से ही डील करना होगी। उमर चीमा ये जो है बात कर रहे हैं कि खान से डील करने के लिए खान से ही डील करना होगी, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ये चले कारतूस है, ये खान साहब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब ये सूरत हाल जनाब आपके सामने है कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करने होंगे, सुलह करनी होगी, उसके अलावा आप इस मुल्क को आगे नहीं लेके जा सकते। सुहेल भाई साहब ने भी कहा कि ये नताइज आपको तस्लीम कर लेना चाहिए। अहमद मीर साहब बार बार बात कर रहे हैं। तो जनाब अब इनको शायद समझ नहीं आ रही कि आप एक बड़ी जमात को दीवार से लगा देंगे, आप एक लीडर को जेल के अंदर डालकर आप कहेंगे जनाब हम उनका मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे, तो क्या आवाम चुप कर लेगी? क्या इससे मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ जाएगा? क्या इससे मुल्क में माशी इस्तेकाम आ जाएगा? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे आप जो है मुल्क में इस्तेकाम पैदा नहीं कर सकते। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और ख्याल रखना के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।